द गनर्स। इन्होंने जैसे प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट किया, बॉटम ऑफ द टेबल आफ्टर 3 गेम वीक्स, कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि ये शायद रेलीगेट हो जाएंगे इस साल, द वे दे वर परफॉर्मिंग। एंड आई थिंक यही एक उनके लिए पॉजिटिव रहा है ये सीजन में कि फ्रॉम दैट पोजीशन दे आर फिनिश्ड 5th। इसके अलावा साका, स्मिथ रो, ओडेगार्ड, इनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है। एंड फॉर द फ्यूचर इफ आर्सेनल बिल्ड्स देयर टीम अराउंड देम, आई थिंक इट विल बी ग्रेट फॉर देम। नेगेटिव्स वर प्लेंटी। 7-8 गेम वीक before the end of the season, Champions League position, 4th spot was in their hands. They were well above Spurs and Manchester United, and they later blew it away. Definitely the negative highlight for their season would be that 3-0 loss against Spurs. एक तो अपना traditional rival, ऊपर से top 4 rival. The way they capitulated, that was not expected. But again, Arsenal being Arsenal these days, they can do anything. So finally they are finishing in Europa League. The best we can give in terms of rating for Arsenal would be a 3 out of 5 performance for this season. Chelsea FC, last season के European champions। स्टार्ट करते हैं इनके पॉजिटिव्स फॉर द सीजन से, और शायद पॉजिटिव सिर्फ एक ही है कि दे वर द बेस्ट अमंग द रेस्ट। सिटी और लिवरपूल एक नेक्स्ट ही लेवल पे थे, और अगर मैं बाकी 18 टीमों की बात करूं तो येस दे वर द बेस्ट अमंग द रेस्ट, बट आई थिंक इससे ज़्यादा और कोई पॉजिटिव चेल्सी के लिए था नहीं इस पूरे सीज़न के अंदर। नेगेटिव्स आर प्लेंटी। स्टार्टिंग विद ऑन द पिच की बात करें पहले, तो जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत करी सीज़न से पहले, मार्की साइनिंग बिग रोमुलू लुकाकू ऑलमोस्ट 100 मिलियन में जो लेके आए ये इंटर मिलान से। अब लुकाकू ने जो परफॉर्मेंस इनको डिलीवर करी है ऑन द पिच वो तो हम सब जानते हैं। आई थिंक जो मॉर्निंग में हम फ्रेश होके काम करते हैं बाथरूम के अंदर, आई थिंक लुकाकू ने वही चीज़ फील्ड पे करी चेल्सी के लिए। इसके अलावा लुकाकू का ऑफ द पिच लव फॉर इंटर मिलान वो सबके सामने एविडेंट आया। अगर मैं ऑफ द पिच नेगेटिव्स के बारे में बात करूं तो द वे रोमन अब्रामोविच को अपना क्लब सेल करना पड़ा बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। अनफॉर्चुनेट था, बट या दैट वाज एक्सपेक्टेड। एंड जब से न्यू ओनरशिप आई है तब से आई थिंक चेल्सी ने एक भी मैच नहीं जीता है अभी तक। सो काफ़ी नेगेटिव्स भरा सीजन रहा है, एंड अगर रेटिंग इनको देनी पड़े तो आई थिंक द बेस्ट आई कैन गिव इज 3.5 आउट ऑफ 5। लिवरपूल, व्हाट अ सीजन। Jurgen Klopp has actually created a beast out of this team. I think apart from Pep Guardiola, it is very safe to say that Jurgen Klopp is right up there as one of the best managers of current generation. Liverpool ka season has been like that well-oiled machine, just like Manchester City. They have just steamrolled the rest of the Premier League. City and Liverpool, they are at the next level. Talking about Liverpool, the way they have performed throughout this season, 14 points behind City at one point. And till the end, last day of the season तक उन्होंने फाइट दी। They have just lost the league by 1 point. In contention for a quadruple, an unprecedented quadruple throughout the season. And at the end, they might finish with a treble, or at least a double with the cup competitions they have already won. Highlight of the season would definitely be dismantling of their perennial rivals Manchester United, the way they thrashed them home and away. But beyond the field as well, the way they recruited Luis Diaz, I think he's going to be a signing of the future. What a player he is. Definitely Liverpool, with this season, they have again notched up another level. And for that, it's 4.5 out of 5. Just 0.5 reducing because they couldn't win the title. But yeah, 4.5 for Liverpool. Manchester City. जब आपके पास करंट एरा का वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर हो और हर पोजीशन के लिए एटलीस्ट 2 या 3 रिप्लेसमेंट, देन अनडाउटेडली इवन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन यू आर कंसिडर्ड वन ऑफ द फेवरेट्स। और यही हुआ मैनचेस्टर सिटी के साथ। डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रॉम द लास्ट सीजन, साइनिंग उन्होंने करी जैक ग्रिलिश 100 मिलियन। उसी टाइम पे पंडित्स, bookmakers, everybody thought it's again a steamroll for City in the Premier League. And that was expected. Albeit Liverpool, City has just steamrolled this particular Premier League season.
उनको कोई भी टीम, चाहे वो टॉप 4 की चैम्पियंस लीग, पॉसिबल चैम्पियंस लीग ओपोनेंट फॉर द नेक्स्ट सीजन, या कोई और टीम इन द प्रीमियर लीग, कोई भी उनको एक प्रॉपर कंपटीशन नहीं दे पाई जैसे लिवरपूल ने दिया. स्टिल विद 93 पॉइंट्स दे हैव सिक्योर्ड द लीग, albeit on the last day of the season. चाहे उनके कप कॉम्पिटिशन्स में उनको वैसी सक्सेस नहीं मिली जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट की थी, बट द वे दे परफॉर्म इन द प्रीमियर लीग, इट वाज entirely a 5-star performance. Hence a 5-star to City. मैनचेस्टर यूनाइटेड लौट कर वही जमाने आ गए, मची है हर तरफ खलबली, सुना है शेर पुराने आ गए. ये वाकया मैंने बहुत बारी सुना है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस से. इस बारी मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, ये पुराने शेर नहीं, घायल शेर भी नहीं, ये वो भीगी बिल्ली है जो एक चूहा भी नहीं पकड़ सकती. इस टीम ने बहुत प्रॉमिस दिखाया था एंड इनको एक चाहिए था एक डिफेंसिव मिडफील्डर, लेकिन वो लेके आए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके आए. उसकी वजह से टीम में डिसबैलेंस बना एंड उसका नतीजा ये हुआ कि ओले अपनी जॉब खवा बैठे. अब उसके बाद आए इंटरिम मैनेजर रैल्फ रैगनिक. उनसे भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि टीम स्काई रॉकेट करेगी, लेकिन आई थिंक जो टीम ने स्काई रॉकेट की जगह रॉकेट छोड़ी, रॉकेट का इंजन ही लगाना भूल गए और वो गिरी है. इस सीजन में जो ब्राइट स्टार्स जो हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, वो है अगेन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, इसलिए बोला जाता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड डेविड डी गिया. और जिस हिसाब से ये सीजन जा रहा है, दे आर लकी टू फिनिश इन यूरोप. उसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये सीजन में 1 out of 5 देता. टॉटनहम हॉटस्पर्स, जिस हिसाब से इनका सीजन शुरू हुआ था, काले बादल पहले ही मंडरा रहे. इनको यही नहीं पता था कि इनका फर्स्ट टीम मैनेजर कौन हो, नुनो एस्पिरितो सैंटो या एंटोनियो कॉन्टे. लेकिन जब स्पर्स ने नुनो एस्पिरितो सैंटो को कंफर्म किया, उनका परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में अच्छा रहा. दे प्लेड वेल. नुनो एक मैनेजर ऑफ द मंथ रहे फर्स्ट मंथ में, लेकिन उसके बाद उनका जो डिक्लाइन था वो बहुत एविडेंट था. एंड उसके बाद जब आप एक वुल्व्स जैसी टीम से आप एक स्पर्स वाली टॉटनहम हॉटस्पर्स की जैसी एक टीम में आते हैं, तो द प्रेशर एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन राइज हो जाती है. वो एक्सपेक्टेशन और प्रेशर आई थिंक सो नुनो नहीं संभाल पाए. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर हैंडलिंग स्टार्स लाइक सॉन एंड केन, एक अलग ही प्रेशर होता है. द टीम के परफॉर्मेंस फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट हैज टू बी स्पॉट ऑन. वो चीज़ नुनो नहीं कर पाए. वो सैक हुए, उसकी जगह पे आए एंटोनियो कॉन्टे. बहुत भीख मांगनी पड़ी स्पर्स को, लेकिन फाइनली एंटोनियो कॉन्टे आए. उन्होंने शिप को स्टेबलाइज करा, उन्होंने फॉर्मेशंस चेंज करी, लोगों को उनकी जगह दिखाई, कुछ को नए जगह पे फिट किया. कुलुसेव्स्की एक रेवलेशन है इस टीम के लिए. एंड मेरे हिसाब से इस टीम के जो टॉप 2 परफॉर्मर्स इस सीजन के लिए हैं, वो ना केन नहीं है इस बारी. फॉर अ चेंज इट इज सॉन एंड कुलुसेव्स्की. एंड जिस हिसाब की परफॉर्मेंस स्पर्स की रही है फिनिशिंग इन यूरोप, आई एम गिविंग देम 3.5 out of 5.